Bismillahirrahmanirrahim. Class 6. I am Ms. Nabila from Army Public School 4 Dots, your history teacher. This is our lecture number 12, and in the previous 11th lectures we studied 3 different chapters, and the first chapter was chapter 1, the ancient world, and second chapter was chapter number 3 from your textbook, the dawn of Islam in Arabia, and third chapter was chapter number 5 from your textbook, chapter Ancient India, which have 2 parts, A, the Indus Valley Civilization, and second was the Iron Era. In this video, which is about chapter number 6, Muslims in South Asia, in this lecture we will study about Muhammad bin Qasim and conquest of Sindh from your textbook page number 61, Mahmud of Ghazni from your textbook page number 62, and Muhammad Ghori from your textbook page number 64. So, first of all, who was Muhammad bin Qasim? So before Muhammad bin Qasim, and the Muslims from Arabs had tried to invade Sindh twice, but they were not successful as Sindh was far away from Arabia. In 712, an Arab Muslim trader died in Sri Lanka, his family along with their belongings, while coming back to their home in Arabia, were attacked and captured by pirates near the coast of Sindh. So Hijaz bin Yusuf, the Arab governor of Iraq, asked the ruler of Sindh, Raja Dahir, to deal with the pirates and send the family back safely. The Raja Dahir refused and told him that the pirates were not his responsibility and he could not anything about the situation. In retaliation, Hijaz bin Yusuf sent an army under the command of his nephew Muhammad bin Qasim to attack Sindh. At that time, Muhammad bin Qasim was only 16 when he defeated Raja Dahir at the port of Dibal, and by 713, the whole of Sindh became a part of the Umayyad Caliphate. So, सबसे पहले 712 से मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पे हमलावर होने से पहले इस जगह पे सिंध पे अरबों ने मुसलमानों ने बहुत 2 दफ़ा जो था वो हमला किया सिंध को फ़तह करने के लिए, लेकिन इस हमले में वो कामयाब ना हो सके क्योंकि सिंध जो था ये अरब से बहुत दूर दराज इलाके पर मौजूद था, यानी उसकी दूरी जो थी अरब से बहुत थी, तो मुसलमानों की जो फ़ौज थी उसको हेल्प आउट नहीं हो सकती थी पीछे से, इस वजह से दोनों दफ़ा यहाँ पे मुसलमानों को हार हुई। इन 712 में एक मुसलमान ताजिर था जो कि श्रीलंका में रिहायशपति थे, तो उनके इंतकाल के बाद उनकी फैमिली और उनका सामान जो था वो श्रीलंका की हुकूमत उनको अरेबिया वापस भेज दी थी। तो रास्ते में वो जहाज़ सिंध यानी कि दीबल के मुकाम से जब वो गुजरा तो यहाँ पे जो पायरेट्स थे उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की जो मुस्लिम्स थे उनके जहाज़ को लूट लिया। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम के जो चाचा थे जो कि इस वक्त हिजाज बिन यूसुफ जो कि इराक के गवर्नर थे, उन्होंने राजा ताहिर को जो कि सिंध का राजा था उससे कहा कि आप अपने के इलाके में पायरेट्स हैं, तो उन्होंने हमारे से मुसलमानों को अपना गुलाम बनाया, कैदी बना लिए, तो उनसे सेफली उन लोगों को और उनका सामान जो उनको सेफली अरब वापस भेजे। तो राजा ताहिर ने उनसे कहा कि मेरे कंट्रोल में वो जो पायरेट्स हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उनके इस इनकार की वजह से हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को जो कि सिर्फ 16 इयर्स के थे इस मुहिम पर भेजा और उन्होंने आके यहाँ पे सिंध पे हमला किया और उन लोगों को आज़ाद करवा लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम की इस फतह के बाद सिंध जो था 713 में उमैया कैलिफेट यानी उमैया खिलाफत का हिस्सा बन गया। And Muhammad bin Qasim was a fair and honest ruler who also conquered the hearts of the local people due to his just and fair system of governance. The local people respected him and mainly accepted Islam of their free and own will. Many ulama came to Sindh during Muhammad bin Qasim's rule, and they brought the light of Islam to the region and introduced a culture of tolerance and equality that had not existed before in the region due to Hindu caste system. तो लास्ट चैप्टर में इन द चैप्टर आर्यन ईरा मैंने आपको इसमें बताया था कि हिंदू जो सिस्टम था, हिंदू जो रिलीजन है उसमें कास्ट सिस्टम होता है, पूरे माशरे को 3 to 4 कास्ट में 3 से 4 जातों में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब मोहम्मद बिन कासिम उन्होंने यहाँ पे हुकूमत करना स्टार्ट की तो मोहम्मद बिन कासिम का और मुसलमानों का जो तरीका हुकूमत है वो उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कोई अमीर कोई गरीब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है।
तो मोहम्मद बिन कासिम और मुसलमानों के इस रूल को देखते हुए कि सबको एक जैसा बराबर सलूक किया जाता था, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो अवाम के साथ और अमीरों गरीबों के साथ सबके साथ एक जैसा सलूक रखते थे। तो बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी रज़ा पर अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया। यहाँ के जो लोकल हिंदू थे वो मुसलमान होना शुरू हो गए। इसके अलावा बहुत से उलमा जो थे जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनकी तालीमात से भी लोग जो थे वो मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। एज अ रिज़ल्ट of the religious teachings of these ulama, many local people accepted Islam, and the Arabs introduced Arabic language, which gave rise to a new culture, literature culture, and the local Hindu people respect Muhammad bin Qasim. तो उलमा की कोशिशों से यहाँ के जो हिंदू लोग थे वो लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। इसके अलावा यहाँ के इलाकों के जो काउंटिंग यूज़ की जाती थी, आजकल जो हम अपने 1, 2 और 3 यूज़ करते हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं द नंबर 6-1। तो ये जो नंबर था ये इंट्रोड्यूस अरबों ने, जब अरब्स ने यहाँ पे सिंध पे कॉन्टेस्ट किया, उन पर फतह कर लिया इलाका, तो ये जो नंबर से मुसलमानों ने, अरबों ने दूसरी दुनिया में यहाँ से सीख कर दूसरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। और मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ के जो लोकल हिंदू थे, जो लोग थे, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। Okay, in the 10th century, a Turk Muslim conqueror from Central Asia came to the subcontinent and established their rule in India. And Mahmud Ghazni succeeded his father Subuktigin and founded the Ghaznavid dynasty when he was only 27 years old. And he was the first to use the title of Sultan. And Sultan Muhammad Ghazni expanded his kingdom from Isfahan in the west to India in the east, and he invaded the subcontinent 17 times. After becoming Sultan, Mahmud wanted to expand his empire towards the west into Persia, and India compared to Persia was weaker and much richer. Every time he attacked India, he went deeper inland and entered to the new lands. In one of his campaigns in Somnath, he broke the idols and found hidden treasures in them. This act earned him the title Mahmud, which means the idol breaker. तो 10th सेंचुरी में एक तुर्क मुसलमान थे जो कि सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया की तरफ, जिस इलाके में हम आज मौजूद हैं, इस इलाके की तरफ उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करने के लिए इस तरफ आना स्टार्ट हुए। बट he was the son of Subuktigin, who was the ruler of Ghazni state near Afghanistan. So the Subuktigin son Mahmud of Ghazni, इन्होंने 17 times हमला किया इंडिया पे, लेकिन 17 टाइम्स उनको डिफरेंट, हर हमले में वो कुछ नए इलाकों को एक्सप्लोर करते, नए इलाकों तक, इंडिया के अंदरूनी इलाकों तक पहुँचते गए। एंड इन द one of his campaigns in which he broke the idols in the temple of सोमनाथ के मंदिर में जब एक दफ़ा अपने हमले के दौरान उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुत थे आइडल से टेम्पल में, तो इसको उन्होंने तोड़ा। उन टेम्पल्स के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ख़जाना जो था वो मौजूद था। उन टेम्पल्स में जो मौजूद आइडल्स थे, बुत, उनको तोड़ने के बाद इनको महमूद, जिसका मतलब है बुत शकन, बुत तोड़ने वाला, उसके नाम से वो नाम इनको, वो लक़ब इनको दिया गया। एंड उन बुतों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सोना, जवाहरात और जो कीमती माल दौलत था वो उनमें रखा हुआ था। तो इन्होंने जब उस बुतों को तोड़ा तो वहाँ से जो भी माल गनीमत हासिल हुआ था उसको अपने शहर गजनी ले गए और वहाँ पे उसकी तामीर व तरक्की में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एंड ही लेटर conquered Punjab as well, and during his rule Ghazni was transformed into a grand state with libraries, mosques, schools, gardens and good living standards. Famous poets like Al-Firdausi and scholars like Al-Biruni and many artists were part of his court. Sultan Mahmud did not stay in India but returned to the Ghazni, leaving his very capable general Ayaz as the governor of Lahore. During Ayaz's rule, the city of Lahore became a cultural and academic center. Many renowned buildings were constructed. Mahmud died in 1030 at the age of 59 and was buried in the simple tomb in Ghazni. तो इंडिया पे हमले के दौरान पंजाब के भी बहुत सारे इलाकों पर महमूद गजनी ने उसको फतह किया और अपने रूल के दौरान इन्होंने अपने शहर गजनी को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, उसकी बहुत तब्दीलियाँ लाई, बहुत उसको अच्छे वेल सेटल्ड शहर बना दिए। बहुत सारे इसमें लाइब्रेरीज, मॉस्क, मस्जिदें, स्कूल्स, गार्डन्स जो थे वो बनाए
और बहुत सारे फेमस पोइट्स लाइक अल-फरदौसी और बहुत सारे स्कॉलर, जैसे कि सबसे बेहतरीन स्कॉलर अल-बिरूनी जो थे वो इनके कोर्ट के, इनके दरबार का हिस्सा थे. अल-बिरूनी वाज द रियल नेम ऑफ अल-बिरूनी वाज अब्दुल रेहान Muhammad ibn Ahmad al-Biruni, and he was from Khwarizm, and he was very remarkable scholar, astronomer, mathematician, historian, traveler, and geographer. He came to India with Mahmud of Ghazni and stayed in the subcontinent for many years. Yes, Mahmud of Ghazni के साथ al-Biruni आए थे, बहुत साल ये इंडिया में रहे, and he recorded his observations of many significant Hindu customs, beliefs, and religion during that time in his famous बुक किताबुल हिंद. और अल-बिरूनी ने जितने भी हिंदू के कस्टम्स थे, रवाज थे, उनके रवायात थे, अकीदे थे, वो तमाम बातें उन्होंने अपनी किताब अल-बिरूनी ने किताबुल हिंद में लिखी हैं. एंड इट इज़ कंसीडर्ड to be the first geography and history book in India, and he also learned Sanskrit during the stay in India. तो महमूद गज़नवी के साथ बहुत सारे स्कॉलर्स थे और पोइट्स भी उनके दरबार में मौजूद होते थे, जिनमें से वन ऑफ द बेस्ट वाज अल-बिरूनी, अ स्कॉलर, एंड अल-फरदौसी वाज अ पोइट. एंड जब गज़नी वापस चले गए महमूद, तो उन्होंने अपने यहाँ पे लाहौर का गवर्नर था अपने एक कैपेबल जनरल अयाज को बना दिया. और अयाज ने अपने दौर हुकूमत में यहाँ पे बहुत सारी बेहतरीन बिल्डिंग्स भी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की. महमूद जो थे 59 एज, व्हेन ही वाज 59, तो ये इंतकाल कर गए और गज़नी के एक छोटे से टॉम्ब में, मज़ार में इनको दफन किया गया. नेक्स्ट वाज महमूद गौरी, हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1192 टू 1206. And Mahmud Ghori was the younger brother of Ghiyasuddin Ghori, the actual ruler of Afghanistan, and he was appointed by his brother as the governor of Eastern Empire, which was near India. तो मोहम्मद गौरी जो थे ये यंगर ब्रदर थे गयासुद्दीन गौरी के, जो कि असल में अफगानिस्तान के रूलर थे. इनके अफगानिस्तान के रूलर के ये छोटे भाई थे, एंड अपॉइंट किया गया इनको इनके भाई ने, गयासुद्दीन गौरी ने, एज अ स्टेट गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न एम्पायर. जो ईस्टर्न इलाका था अफगानिस्तान, वहाँ के इलाके के लिए इनको गवर्नर अपॉइंट किया था, जो कि इंडिया से बहुत नज़दीक था. एंड ही ट्राई टू अटैक इंडिया इन 1191 पर इंडिया पर उन्होंने हमले की कोशिश की, बट ही वॉज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ दिल्ली. दिल्ली का जो राजा था, राजा पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने इसको शिकस्त दी. एंड द फॉलोइंग इसी साल इन दैट ईयर मोहम्मद गौरी अटैक दिल्ली विद द ग्रेटर फोर्स एंड डिफीटेड पृथ्वीराज इन द बैटल ऑफ टेरन and captured Delhi. This event established Muslim rule in India for many centuries. One of his very capable governors, Qutbuddin Aibak, a slave, was left behind to govern the Ghori Empire, with Muhammad Ghori decided to return the Ghor, and the Ghori's assassination near Lahore is 1206 paved way for the Qutbuddin Aibak to become the next ruler of Delhi due to the absence of natural hire. Okay. तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, महमूद गौरी जो थे वो गयासुद्दीन गौरी के जो अफगानिस्तान के रूलर थे उनके ये छोटे भाई थे. उन्होंने अपने भाई के लिए, गयासुद्दीन गौरी ने अपने भाई मोहम्मद गौरी को अफगानिस्तान के ईस्टर्न इलाके का गवर्नर बना दिया था, जो कि इंडिया से नज़दीक था. इंडिया से नज़दीक होने की वजह से मोहम्मद गौरी ने कई दफ़ा हमला किया इंडिया पर, लेकिन हर दफ़ा पहले हमले में पृथ्वीराज चौहान ने उनको शिकस्त दे दी और वो वापस अपने इलाके लौट गए. उसी साल वो ज़्यादा मज़ीद और बेहतरीन फ़ोर्स के साथ, ज़्यादा फ़ौज के साथ उन्होंने इंडिया पर हमला किया और दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया, दिल्ली पे अपना कब्ज़ा कर लिया. और लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो वापस चले गए अपने इलाके गौर में. लेकिन जाने से पहले अपना एक जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनका ग़ुलाम था, उसको दिल्ली का हुक्मरान बना दिया. ठीक है. अब उनके असल में उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, अपना कोई बेटा नहीं था जो कि उनकी जगह सल्तनत का बादशाह बन जाता. तो उन्होंने अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसको अपना बेटा भी कहते थे, उसी को दिल्ली का हुक्मरान बना दिया और वापस चले गए अपने इलाके गौर में. And here is the homework of this video. Make a lesson title of the chapter number 6, Muslims in South Asia. Then answer this question: when and how did Islam spread in this region? आपको होमवर्क में कोई भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होते हैं तो you can ask your teachers. Thank you.